Hello, my lovely traders. I hope you all are doing well. Now, today was another amazing day into the markets. We booked good, more than 4,000 rupees per lot size in profits with the Red Circle members. So, congratulations on that. The markets today rallied in the first 15 minutes to touch and break the level of 15,000 in Nifty and 34,000, I believe, in Bank Nifty. But then the severe profit booking pressure kicked in and the markets fell a lot. Nifty fell more than 200 points after that, and I think Bank Nifty fell more than 1,000 points after that. So a lot of market madness was there. It was an expiry day. हमने अच्छा पैसा बनाया एक्सपायरी के दिन, पूरा फायदा उठाया हमारे हिस्टोरिकल सपोर्ट्स और हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। किस तरीके से हमने टारगेट को ट्रेल किया, किस तरीके से हमने स्टॉप लॉस रखा, किस तरीके से हमने प्रॉफिट्स को बुक किया, ये मैं ऑलरेडी आपके साथ एक दूसरे वीडियो में शेयर कर चुका हूं। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो सो दैट यू कैन एक्चुअली लर्न हाउ टू set up your trades with the most effective ways, even on the expiry days. So it was an amazing expiry for us. No, it doesn't matter the market went up or down. What matters is that did we make money or not? So yes, we did make good money. I personally booked more than 40,000 in profits. I've already shared those profits with you on Telegram as well as on the another video. उसको जरूर जाके देख लीजिएगा ताकि आप बेहतर से बेहतर नॉलेज ले सकें इंट्राडे ट्रेडिंग के concepts के बारे में, because I am a very technical sort of trader. I love to see the charts, the naked charts, so that I can understand what the charts are telling me. I can understand what the market is trying to convey here. Other than, if you're a short-term trader, if you're an intraday trader, the technical analysis is much more important than the fundamental analysis. अगर आप swing trader हैं या आप एक option seller हैं जो आप long-term straddles में काम कर रहे हैं, या आप अगर ये swing trader हैं तो आपके लिए fundamental analysis भी ज़्यादा काम आ सकती है. But in general, technicals work very well if you have the capacity to read the markets on time in a right way, and if you actually can stay disciplined. Because intraday trader के लिए, especially option buyers like us, if you'll go to the traders carnival or something, I've already told you, you'll find a lot of option sellers and you'll find equal number of option buyers, my friend. So अगर आपको ऐसा कोई बोलता है that option buying is not a profitable thing to do, no, option buying is definitely a profitable thing to do. But the point is, do you actually have that kind of discipline कि आप option buying से पैसा बना सकें? Because option buyer सिर्फ एक ही तरीके से पैसा बना सकता है अगर मार्केट उसके फेवर में चला जाए, बट ऑप्शन सेलर दो तरीके से पैसा बना सकता है, अगर मार्केट उसके फेवर में चला जाए या फिर मार्केट साइडवेज चला जाए. सो हम ऑप्शन बाइंग भी करते हैं, सेलिंग भी करते हैं, बट इनहेरेंटली आई एम एन ऑप्शन बायर, एज यू ऑल नो दैट. सो वी बुक गुड प्रॉफिट्स टुडे एनीवेज. एंड आगे बढ़ने से पहले, जस्ट इन केस इफ यू हैव नॉट जॉइंड मी ऑन द रोरिंग बुल्स टेलीग्राम चैनल, गो एंड जॉइन, सर्च फॉर रोरिंग बुल्स टेलीग्राम. एंड इफ यू विश टू बिकम अ पार्ट ऑफ रोरिंग बुल रेड सर्कल कम्युनिटी, you are most welcome, and you will get a lot of learning, my friend. Every weekend we have some masterclass, every month we conduct some webinar or training so that you can actually learn how to trade into the markets. Roaring Bulls is not a community of people जहां पे spoon feeding आपको कराई जाए. Roaring Bulls is a community of people जहां पे आपको सिखाया जाए, जहां आप सीखें, एक दूसरे से सीखें, मुझसे सीखें, कैसे भी सीखें कि कैसे ट्रेडिंग बिजनेस में सक्सेस हासिल करी जाती है. Mark my words, trading is a business. Trading is not gambling. Trading is not तुक्का. Trading is not so easy कि आप मोबाइल से बस एक स्वाइप करेंगे और आपको पैसा बन जाएगा. No, trading is a business, and every business comes with risk and rewards. So without further ado, we'll go ahead and look how the markets behaved today. What were the global and the local cues that affected the markets, and what can be the trading levels for tomorrow? Okay, so we'll discuss everything. Stay tuned till the end of the video, my friend. This is Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show. Okay, so let's quickly just jump into the video. Let me turn on the screen recording for you. Okay, so what I can see here very clearly is that, one second, let me open up the data for Nifty 50 for the day, and we'll discuss everything after that. So yes, okay, we can see that Nifty had Nifty had 22 advances for the day and 28 declines. So it was not a very bullish advance to decline ratio, but in general, the index tried to cross 15,000 level at least once. That's a good sign. That's a good sign, and 14,800 can be a good support from here on. We'll discuss all of it moving ahead. Let me quickly see if the
FII DI data is out, so no, the FII DI data is not out yet. But the thing is, in last trading session, कल के trading session में हमने ये चीज देखी कि FIR were the net sellers and DIs were also the net sellers in the last trading session. So that's a good thing that FIs have been selling for a very long time now. Can you see that this is about 20th April, by the way. FIs have been selling for a very long time now. Finally, FIs decided to buy yesterday. So that's actually a good sign. You know, this is FI bought for 766 crores yesterday, April 28th. And along with that, DI has also bought yesterday. So कल तो markets कितना ऊपर गए आपने देख ही लिया था. Other than that, let's quickly look at how did the indices perform for the day. So what were the top gainers? Top gainers were so top gainers were Nifty Metal, Nifty Commodities, Nifty. Other than that, Nifty Small Cap, Nifty. Other than that, let me just again, India VIX is also up, by the way. So India VIX is also a gainer. So Nifty Energy, Nifty Pharma, and Nifty Private Bank were from the gainers. Nifty Energy, Nifty Pharma, and Nifty Private Bank were from the gainers. Other than that, let's quickly look at the losers for the day. What were the two top losing index for the day? 1 second. Let me just open up this. Okay, so Nifty PSU Bank is one of the top losers for the day. Nifty Auto, Nifty FMCG, Nifty IT, Nifty Media, these are all the top losers for the day. Okay, without moving ahead, let's quickly discuss what are the global and the local cues that are affecting the markets and what can happen in next trading session. So before moving ahead, let me quickly tell you, just go and search for Roaring Bulls, the stock market show on Telegram, and you will easily find us there. It's a great channel to follow. You'll love the content over there. You'll love a lot of learning over there. So make sure to follow us on Telegram. Okay, so let's quickly discuss about the post-market bites. Yes, so the monthly expiry has ended with some good volatility of highs and lows. As you can see, the markets behaved very violently today. Nifty after opening at 14,987 सीधे 15,000 का लेवल निफ्टी ने तोड़ दिया, बट उसके बाद 230 पॉइंट नीचे गिरा निफ्टी, कल के लेवल तक पहुंचा और वहां से सपोर्ट किक्ड इन वेरी स्ट्रांगली और निफ्टी ऊपर जाके 14,894 यानी 14,894 पे जाके क्लोज हुआ है. दैट वाज ओनली 30 पॉइंट्स अप. It was 0.2% up for the day, but still it didn't close in red. It's again straight away fourth trading session जहां निफ्टी ग्रीन में क्लोज हुआ है. बैंक निफ्टी गैप अप के साथ ओपन हुआ, पर पहले हाफ आवर के अंदर ही सीवियर प्रॉफिट बुकिंग आ गई एंड द इंडेक्स फेल मोर देन 1000 पॉइंट्स आफ्टर दैट. इस पूरे 1000 पॉइंट्स में ही हमने भी अपना अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अनदर वीडियो कि वो प्रॉफिट कैसे बना है. सो बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट जाके क्लोज हुआ है. इट वाज जस्ट डाउन बाय 8 पॉइंट्स. इट क्लोज्ड एट 33,714. सो नो एज सच नो मूवमेंट इन बैंक निफ्टी फ्रॉम ओपन टू क्लोज if you look today. And other than that, the Competition Commission of India CCI has cleared the mega deal of Tata Group to acquire Big Basket. So but this news I think has already factored in the Tata Consumer Products. तो कोई खास मूवमेंट उधर देखने को नहीं मिला, बट अगेन दिस इज अ न्यूज दैट यू शुड नो. सो ये डील अप्रूव हो गई है. टाटा ग्रुप बिग बास्केट को एक्वायर करेगा. ये डील अप्रूव हो चुकी है. Reliance Industries is reported to have talks with Saudi Aramco to sell stake in petrochemical business. So thus this made the stock rally sharply in the morning, but उसके बाद कहीं ना कहीं नीचे आया स्टॉक और 1.2% अब जाके ही क्लोज हुआ है. सभी आप देखेंगे निफ्टी 50 इन जनरल द इंडेक्स ट्राइड टू इंडेक्स डिड क्रॉस द 15,000 level, but after that profit booking came in every sector and the index fell down. So next is Hindustan Unilever. Hindustan Unilever reported a net profit of 2,140 crores in quarter 4. That's a good profit. So stock rallied as well. After that, let's look what happened in Bajaj Finserv. Quarter 4 Bajaj Finserv results कल ही आ चुके थे. So quarter 4 results were good and Bajaj Finserv continued its rally along with Bajaj Finance. So Bajaj Finserv was up by 6.5%. Bajaj Finance was up by 3.8%. Now the question is, what's my view on the markets ahead? So Nifty अभी अगर आप देखेंगे तो 14,151 जो कि लास्ट थर्सडे को चल रहा था, और आज एक नया थर्सडे इस बार खत्म हो चुका है. सो इन 1 वीक, इन जस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस, निफ्टी वेंट फ्रॉम 14,151. जरा ध्यान से आप यहां पढ़िएगा मैं क्या लिख रहा हूं. 14,151 से 15,050 तक निफ्टी की रैली लगी है. 900 पॉइंट्स रैली इन जस्ट 5 ट्रेडिंग सेशंस. दैट इज सो अमेजिंग टू सी. दैट इज सच इज द स्ट्रेंथ ऑफ बुल्स. व्हेन द मार्केट बिकम्स बुलिश, this is how it becomes bullish. It's very furious when it's bullish. So the rally was of 900 points in last 1 week, and after that
अगर निफ्टी को एफआई सपोर्ट करते रहे, इन जनरल इफ एफआई, निफ्टी को नहीं, इन जनरल इफ द एफआईएस विल कंटिन्यू बाइंग, then only we can see the markets going further up from here, because generally क्या होता है इस higher level पे जब market आ जाता है, so the DIIs start in to come in the selling mode, और अगर DIIs selling करते हैं तो FIIs have to come in as a buyer to support the markets, otherwise you can again see a huge volatility and a huge fall into the markets ahead. Okay, so 14,800 is a good support level as of now, and 33,000 is again a good support level in Bank Nifty. So this is what I feel with the markets ahead. This is how our trading session looked like for the day. We booked very good profits. 4,875 points per lot. It was an amazing day. We trailed our profits to 195 points. हमने बैंक निफ्टी 34,000 पुट ऑप्शन लिया था. वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा, वहां पे मैंने आपको क्लैरिटी के साथ समझाया कि ये कैसे वर्क किया. 355 पे एंट्री करी थी, 550 पे हमने उसको प्रॉफिट बुक किया. इट वॉज अ ग्रेट डे, ग्रेट डे. द लॉजिक हैज बीन ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू. सो लेट्स क्विकली जंप ऑन टू द चार्ट्स. कल क्या हो सकता है इसको हम अभी एनालाइज कर लेते हैं. इफ यू लुक एट द बैंक निफ्टी इंडेक्स, दिस इज हाउ द बैंक निफ्टी इंडेक्स लुक लाइक. जस्ट हैव अ लुक. यहां पे भी मैं आपको शेयर कर देता हूं. हमारी एंट्री यहां पे थी, मैंने आपके साथ मार्क कर रखा है. यहां पे हमारी एंट्री थी. हमारे पाइवट पॉइंट का ब्रेकडाउन जो है इस जगह पे हमारी एंट्री थी. यहां पे आप इस पॉइंट को पढ़ सकते हैं. और 33,967 का जो सपोर्ट है वो जब ब्रेकडाउन हुआ तो हमने इस जगह पे अपनी एंट्री टारगेट करी. सो दिस वाज आवर एंट्री. इसके ऊपर ही हमारा स्टॉप लॉस था और हमारा टारगेट यहां पे था, टारगेट 1, यहां पे था टारगेट 2. हमने टारगेट 2 पे पूरी तरह अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लिया. ऑलरेडी मैं आपके साथ एक डिफरेंट वीडियो में उसको शेयर कर चुका हूं. सो लेट्स जस्ट डिस्कस about the Bank Nifty index first. Okay, this was under replay, so let me quit it. Yes, okay, yes. So this is how our day looked like for today. And बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त एक गैप अप ओपनिंग के बाद अच्छा खासा रेजिस्टेंस 34,348 का जो जोन है हमारा ऑलरेडी मार्क था. इस जोन में रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा इंडिसाइसिव हो गया इंडेक्स, और उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ इंडेक्स ने बता दिया कि मैं नीचे जाने तैयार हूं. ये सपोर्ट भी टूट गया और यहीं से हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ था. उसके बाद पूरा इंडेक्स नीचे गया. सीपीआर इज सच अ ब्यूटीफुल इंडिकेटर. कैन यू सी सीपीआर ओवर हियर? सीपीआर, सेंट्रल पाइवट रेंज. इसको अपने चार्ट्स में लगा लीजिए, बिकॉज सीपीआर कैन ऑलवेज टेल यू इफ द इंडेक्स कैन रिवर्स और इफ द इंडेक्स कैन ब्रेक डाउन. तो आप देख सकते हैं सीपीआर के लोअर क्वेश्चन से एग्जैक्टली यहां पे जबरदस्त बुलिशनेस आ गई वापस इंडेक्स के अंदर. एंड द इंडेक्स अगेन वेंट अप फ्लाइंग टिल द ऑलमोस्ट द ओपनिंग लेवल 33,965 के लेवल तक ऊपर गया, और वहां से फिर रिजेक्शन फेस करके इट अगेन वेंट डाउन. सो अगर हम देखें तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का काम इस जोन में हो चुका था. उसके बाद इंडेक्स कहां गया इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट इज हाउ एन इंटेलिजेंट ट्रेडर, इंटेलिजेंट इंट्राडे ऑप्शन बायर शुड वर्क लाइक. नहीं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, यहां पे प्रॉफिट मिल गया, उसके बाद चलो ठीक है अब एक ट्रेड इसके लिए ले लेते हैं, एक ट्रेड इसके लिए ले लेते हैं, एक ट्रेड इसके लिए ले लेते हैं. ये तो आपको चार्ट बन के दिख रहा है, इसीलिए आपको पता है आज ये हुआ. जब आप मार्केट के अंदर रहते हैं तब आपको ये थोड़ी पता रहता है कि यहां से नीचे चला जाएगा, यहां से रिवर्स कर जाएगा. सो यू एंड अप मेकिंग मोर लॉसेस. तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रॉफिट को एंजॉय करना सीखिए ताकि आप सक्सेसफुली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकें. नाउ व्हाट कैन बी द लेवल्स फॉर टुमारो? लेट्स डिस्कस द लेवल्स फॉर टुमारो. टुमारो इज गोइंग टू बी अनदर इंपॉर्टेंट डे. मे सीरीज की शुरुआत होने वाली है. सो लेट्स डिस्कस द लेवल्स फॉर टुमारो. कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बैंक निफ्टी के लिए रहेगा दैट इज दिस लेवल. सो 33,965 is your resistance 1 for tomorrow, and resistance 2 is 34 रेजिस्टेंस 2 is 34,348. This is your resistance 2, this is your resistance 1. मैंने आपके साथ दोनों रेजिस्टेंस डिस्कस कर लिए हैं. अब हम सपोर्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं. अगर नीचे गिरता है तो इंडेक्स कहां जा सकता है इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है. सो लेट मी जस्ट शिफ्ट इट अप. अभी यहां पे क्लियरली हमको सपोर्ट जोन भी बहुत एविडेंटली विजिबल है. लेट्स डिस्कस द सपोर्ट. सो सबसे पहला सपोर्ट का तो ये पूरा जोन आपके पास क्लियरली एविडेंट है, ठीक है. क्यों ये सपोर्ट का जोन मैं बोल रहा हूं? बिकॉज 33,188 एक हमारा हिस्टोरिकल सपोर्ट है, और यहां 33,300 से आज इंडेक्स ने रिवर्सल दिखाया है. सो I'll say that this zone is a support zone, ठीक है. तो इस सपोर्ट जोन को हम मार्क कर लेते हैं 33,188 टू 33,300. दिस इज योर सपोर्ट जोन. इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट आएगा सीधे 33,042 के लेवल पे, ठीक है. सो दिस इज योर नेक्स्ट सपोर्ट. ये बैंक निफ्टी के कल के हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट डिस्कस हो गए हैं. अब हम बात करते हैं निफ्टी की. सो निफ्टी again opened with a gap up. Can you see that it opened with a big gap up and resistance बहुत evidently marked था. यहाँ पे 15,046 पहले से marked है क्योंकि इंडेक्स पहले भी resistance face कर चुका है. That is why we call them historical resistance and historical supports. और
टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक कंसेप्ट है दैट द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाट हैपेंड। यहां पे रेजिस्टेंस फेस करके इंडेक्स ने क्लियर कर दिया एक थोड़ा सा इंडिसाइसिव जोन में जाने के बाद कि ये जो बेरिशनेस दिख रही है ये बहुत स्ट्रांग है और प्रॉफिट बुकिंग सीवियरली आ गई। इसके बाद यहां पे इंडेक्स पूरी तरह फॉल किया अगेन, जस्ट लाइक बैंक निफ्टी। क्या आपको ये दिख रहा है कि सीपीआर जोन कितना ब्यूटीफुली वर्क किया यहां पे भी। सो इंडेक्स फेस्ड सपोर्ट फ्रॉम सीपीआर और यहां से रिवर्सल होके वापस ऊपर चला गया इंडेक्स। सो सीपीआर वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली माय फ्रेंड, प्लस रेजिस्टेंस और सपोर्ट बहुत ब्यूटीफुली वर्क करते हैं। पहला एग्जांपल है यहां पे रेजिस्टेंस का, दूसरा एग्जांपल क्या है यहां पे सीपीआर के सपोर्ट का, तीसरा एग्जांपल क्या है यहां पे अगेन रेजिस्टेंस का, फिर यहां अगेन रेजिस्टेंस का, फिर यहां अगेन सपोर्ट का, यहां अगेन सपोर्ट का। क्या आपको दिख रहा है जितने भी रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन है वो कितना क्लियरली रिस्पेक्ट हो रहे हैं? ये रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन ऑलरेडी मार्क्ड थे हमारे पास। सो आपको हेल्प क्या होती है अगर आपको ये पता है कि इस जगह पे इंडेक्स सपोर्ट फेस कर सकता है और आपका एंट्री ट्रिगर यहां पे है, तो आपको अपना एग्जिट टारगेट क्लियर हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड वेयर टू बुक योर प्रॉफिट्स। ओके, सो अगर आपने नहीं लगा रखा अभी तक तो लगा लीजिए। लगाएंगे कैसे? मार्क कर लीजिए हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स को। इसके ऊपर पूरी मास्टर क्लास मैं आपके लिए फ्री में बना चुका हूं। प्लीज गो एंड अटेंड दैट मास्टर क्लास ताकि आप हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस सपोर्ट को मार्क करना सीख जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद से निकालना सीख जाएं कि कहां हमारा रेजिस्टेंस है, कहां सपोर्ट है। ठीक है, सो व्हाट कैन हैपन इन द मार्केट्स टुमारो इन निफ्टी, लेट्स डिस्कस दैट। कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन की बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो सबसे पहले निफ्टी को फेस करना होगा दैट इज दिस 14,925 इज गोइंग टू बी योर R1, 14,960 इज गोइंग टू बी योर R2 और उसके बाद आज का हमारा जो लेवल था ये R3 आपका। ये तीन लेवल मैं आपके लिए कल के लिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत वायलेंटली बुलिश अगर इंडेक्स होता है तो ये लेवल्स पे इंडेक्स हॉल्ट कर सकता है। सपोर्ट की अगर हम बात कर लें तो द सपोर्ट विल कम स्ट्रिक्टली अराउंड दिस जोन। ठीक है, ये पूरा जोन एक्चुअली सपोर्ट जोन है, इस जोन को हम सपोर्ट बोल सकते हैं। फ्रॉम 14,779 टू 14,820 और 30 आई विल से यहां तक का ये पूरा सपोर्ट जोन है। इसको आप मार्क कर लीजिए, यहां पे कल इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पुट राइटिंग एट द 14,800 लेवल्स। तो ये पूरा एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ओके, और ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, आर रेजिस्टेंस मेजर और ये सपोर्ट मेजर, ये दोनों मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी हाउ दे फॉर टुमारो इन द the next May series about to start from tomorrow. So it's going to be amazing to book good profits in the month of May. हमने February, March, April, all 3 months we have ended in green. Yes, there were some losses in between, but losses are part of trading business, my friend. The earlier you accept it, the better ट्रेडर यू विल बिकम। सो अगर आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाएं, लॉसेस को कट करना सीख जाएं और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना सीख जाएं तो आप ट्रेडिंग की दुनिया में बेहतर सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू हियर। सो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगेन एज आई रिक्वेस्ट यू एवरी टाइम, स्मैश दैट लाइक बटन, लाइक दबा दबा के तोड़ दो उस लाइक बटन को। ये लेट यूट्यूब नो दैट इट हैज टू शो दिस वीडियो टू मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेडर्स who are willing to learn and earn with Roaring Bulls community. So I hope you enjoyed this video. Don't forget to subscribe, my friend. This is your friend Utkarsh Bhargav. You are watching Roaring Bulls, the stock market show.